صدر آصف علی زرداری کا کاشغر فری ٹریڈ زون کا دورہ۔ زون سڑک، ریل اور فضائی راستوں سے ایشیا اور یورپ سے منسلک 3.5 کلومیٹر پر محیط کاشغر زون سوسپورٹ، گلگت بلتستان اور گوادر سے جڑا ہے۔ ویئر ہاؤسنگ، لاجسٹکس، پروسیسنگ، کسٹمز اور ایئر فریٹ کی سہولیات موجود۔ ای وی گاڑیاں، بیٹریز، سولر سیلز اور ہائی ٹیک مصنوعات برآمد کی جاتی ہیں۔ فری ٹریڈ زون سے تجارت دنیا کے 118 ملکوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ صدر مملکت نے وسط ایشیائی ملکوں، یورپ، جنوبی کوریا اور جاپان کے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ ازبکستان اور قزقستان کے تعاون سے قائم انڈسٹریل پارکس پر بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری کا کاشغر یونیورسٹی کا دورہ۔ یونیورسٹی میں 40,000 طلبہ زیر تعلیم۔ یونیورسٹی سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، زراعت، سماجی علوم، آرٹس اور کلچر سمیت مختلف شعبوں میں تعلیم فراہم کرتی ہے۔ صدر کو سی پیک سینٹر کے حوالے سے بھی بریفنگ۔ صدر مملکت کی پاکستانی طلبہ سے بھی ملاقات۔ پاکستانی طلبہ دونوں ملکوں کی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں، صدر آصف علی زرداری۔ سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے دوسرے فیز میں ہائی پاور ٹریکٹرز کے لیے قرعہ اندازی کر دی۔ 9,500 کامیاب کسانوں کو ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ کل 2,82,000 کسان اہل قرار پائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے قرعہ اندازی میں کامیاب کاشتکار کو خود ٹیلی فون کر کے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن ادارے ہوپ چلڈرن کینسر سینٹر کے وفد کی ملاقات۔ بچوں کے کینسر کے علاج میں جرمن اداروں کی معاونت پر اتفاق۔ پیڈیاٹرک آنکولوجی کے لیے جرمنی کی جدید ٹیکنالوجی کا خیر مقدم۔ جوائنٹ ٹریننگ کی خاطر خواہ نتائج سامنے آئیں گے، مریم نواز۔ ڈاکٹر سٹیفن مائیکل نے جدید طبی سہولتوں کی فراہمی کے حوالے سے حکومت پنجاب کی کاوشوں کو سراہا۔ جعفر ایکسپریس حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان میں پراسرار طور پر مارا گیا۔ فتنہ الہندوستان کا خارجی دہشت گرد گل رحمان عرف استاد کراچی میں چینی کونسل خانے، گوادر پی سی ہوٹل، حزدار اسکول بس دھماکہ، کراچی میں کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ خودکش دھماکہ، پاکستان سٹاک ایکسچینج حملہ اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ پاکستان اور چین کا دہشت گرد تنظیم مجید بریگیڈ کو اقوام متحدہ کی دہشت گرد فہرست میں ڈالنے کا مطالبہ۔ سیلاب نے ملک میں بہت تباہی مچائی۔ متاثرین کی آبادکاری کے لیے آخری وقت تک ان کے ساتھ ہیں۔ بحالی کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں متحرک ہیں۔ متاثرین کے بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی۔ ملتان کے قریب جلال پور پیروالا پر موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلابی پانی میں بہہ گیا۔ موٹر وے پر دریائے ستلج کا پانی شدید بہاؤ کے ساتھ دریائے چناب کی جانب بہہ رہا ہے۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے شگاف میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ ملتان سے جھانگڑا تک 8ویں روز بھی موٹر وے بند۔ ملتان سے سکھر والی ٹریفک متبادل راستے سے سفر کر سکتی ہے۔ شاہ شمس انٹرچینج سے قومی شاہراہ کی جانب ٹریفک جا سکتی ہے۔ اوچھ شریف سے انٹرچینج سے دوبارہ موٹر وے M5 پر سفر کر سکتے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا جلال پور پیروالا کا دورہ۔ سیلاب سے متاثرہ 36 انچ گیس پائپ لائن کا جائزہ لیا۔ کمشنر کی وزیر پیٹرولیم کو ریلیف اور ریسکیو آپریشن پر بریفنگ۔ موٹر وے متاثرہ حصے پر بحالی کا کام بھاری مشینری کے ذریعے جاری ہے۔ سیلابی پانی کم ہوتے ہی تمام آبادیوں میں نقصانات کا سروے شروع کیا جائے گا۔ دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی۔ کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھرپور امدادی کارروائیاں جاری۔ میڈیکل کیمپس میں مفت ادویات کی فراہمی، کیمپس میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل۔ وفاقی وزیر صحت نے اپنی بیٹی کو HPV ویکسین لگوا کر منفی پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ اپنی بیٹی کی طرح مجھے قوم کی بیٹیاں بھی عزیز ہیں۔ ویکسینیشن کے حوالے سے پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ پاکستان 151واں ملک ہے جہاں سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ والدین اپنی بچیوں کی ویکسینیشن ضرور کرائیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال۔
मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए माशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा अहम संग मील है। तारीखी दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ। अम्मार के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया की नजरें अब पाकिस्तान पर हैं। हमने मिलकर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाना है। ताजरों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की पाक फौज के शहीद जवान राना उसामा के घर आमद, शहीद की कुर्बानी को शानदार खराज अकीदत पेश किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियों से मुल्क महफूज है। राना तनवीर हुसैन। पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई। वयाना में IAEA की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस, आलमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी का पाकिस्तान की मुसलसल पेशरफ्त और एजेंसी के साथ करीबी ताउन का एतराफ़। पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान अहम शराकतदार के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। राफेल मारियानो ग्रोसी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां। श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शुपिया में छापे। नौजवानों को सख्त हिरासत किया। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात जब्त। हमें आमराना निजाम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का इंतकाल कश्मीरी अवाम के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक। बैक वक्त 3 इसराइली फौजी डिवीजन का गजा पर बड़ा जमीनी हमला। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा सिटी पर अंधाधुंध बमबारी में 38 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कहत का शिकार होकर मौत के मुंह में जाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 442 हो गई। 147 बच्चे भी शामिल। बेसर सामानी में बेकस फलस्तीनियों का गजा सिटी से जनूबी गजा की जानिब इनखला। अब तक 4,50,000 फलस्तीनी गजा शहर छोड़कर जनूबी इलाके की तरफ हिजरत कर चुके। दुनिया को इसराइल की धमकियों से खौफजदा नहीं होना चाहिए। गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। कहत, तिब्बी सहूलियात की कमी और घरों से बेदखली फलस्तीनी अवाम की तकालीफ को बयान नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने गजा के हालात को बदतरीन सूरत हाल करार दे दिया। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल दुबई में एक बार फिर आमने सामने। मुकाबला शाम 7:30 बजे PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स हिसाब बराबर करने के लिए पुरअज़्म। भारत के खिलाफ मुकाबले से कबल कौमी क्रिकेट टीम की अहम मीटिंग। मैच के हवाले से हिकमत अमली तरतीब थी। खिलाड़ियों की ICC एकेडमी में भरपूर प्रैक्टिस। 3 घंटे तक कोचेस के ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। सारा हमारा यूथ बहुत एंजॉय करता है। इंडिया और पाकिस्तान तो लाइक आपको पता है सबको ही क्रेज होता है इसका। जब भी मैच होता है इंडिया के साथ तो हमारी ये पूरी कौम की दुआएं होती हैं कि हमारा मुल्क जीते। जो हमारे लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया के हालात थे उसमें हमने इंडिया को बड़ी अच्छी मात दी। हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम भी इसी तरह इंडिया को मात दे। इंडिया के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा इंडिया को और परफॉर्म अच्छा करेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। कौमी टीम में तमाम खिलाड़ी मैच विनर हैं। मैदान में जवाब देंगे शायकीन। A little bit leg side, he's picked that up beautifully.
Beautiful shot. And off the over so far. And he's going to get more. दुबई में T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले का आगाज। श्रीलंका और बांग्लादेश मध्य मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। श्रीलंकन क्रिकेटर दुनंत विलालगे के वालिद इंतकाल कर गए। एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी। श्रीलंकन खिलाड़ी मैच में स्याह पट्टियां बांधकर शरीक। दुनंत विलालगे भी मैच में हिस्सा ले रहे हैं। और पाकिस्तान टेलीविजन लाया अपने नाज़रीन के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म, पाकिस्तान आइडल। अपनी सुरीली आवाज का सहर जगाएं हमारे जजेस के सामने। अगर आपने अपनी सलाहियत साबित कर दी तो आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लाएगा पाकिस्तान टेलीविजन। पाकिस्तान आइडल के मुकाबले बहुत जल्द कौमी स्क्रीन पर। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुक करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान। फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामुदीद। सबसे पहले आपको बताएं, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने काशगर में फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया। वो काशगर यूनिवर्सिटी भी गए और जामिया के तलबा और असातिज़ा से मुलाकात की। सरीनियर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी सदर ममलकत से मुलाकात की। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी अपनी रिपोर्ट में। सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर फ्री ट्रेड जोन का दौरा किया। उन्होंने वस्त एशियाई ममालिक, यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। सदर मुमलिकत को बताया गया कि ट्रेड जोन में वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, प्रोसेसिंग, कस्टम्स और एयर फ्रेट की सहूलियात मौजूद हैं। काशगर फ्री ट्रेड जोन 3.5 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और यहाँ से तिजारत का दायरा कार दुनिया के 118 मुल्कों तक फैला हुआ है। फ्री ट्रेड जोन से EV गाड़ियाँ, बैटरियाँ, सोलर सेल्स और हाईटेक मसनूआत बरामद की जाती हैं। जोन सड़क, रेल और फजाई रास्तों से एशिया और यूरोप से मुंसलिक है, जबकि इसका अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। सदर आसिफ अली जरदारी को बताया गया कि जोन सोस्त पोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर पोर्ट से जुड़ा हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने काशगर यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर पार्टी सेक्रेटरी डेंग बांग वैन, जामिया की फैकल्टी और तलबा ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ज़राअत, समाजी उलूम, आर्ट्स और कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में तालीम फ्राहम करती है। यूनिवर्सिटी में 40,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तानी तलबा से भी मुलाकात की और उनके तालीमी और रिहायशी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। तलबा ने बताया कि तालीम, हॉस्टल और वजीफा मुकम्मल तौर पर चीनी हुकूमत फ्राहम करती है। सदर आसिफ अली जरदारी ने तलबा पर जोर दिया कि वो मेहनत से पढ़ें और पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएं। सदर मुमलिकत को CPEC सेंटर के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई।
सरीन एयर के सीईओ योंचन यांग ने सदर आसफ अली जरदारी से काशगर में मुलाकात की। सरीन एयर पाकिस्तान की फ़ज़ाई सनत में चीनी निजी सरमायाकारी की पहली मिसाल है। ये पहली निजी पाकिस्तानी एयरलाइन बीजिंग के लिए अपनी परवाजें फराहम कर रही है। सदर मुमलिकत ने सरीन एयर के सीईओ से कहा कि वह पाकिस्तान में अपने तैयारों की तादाद में इजाफा करें। डॉक्टर यांग ने पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। सदर आसफ अली जरदारी काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद भी गए। काशगर की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी याओनिंग और इमाम में माती जोबन ने उनका इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को मस्जिद की तारीखी अहमियत और विरसे पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने मस्जिद के शानदार फन तामीर की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने असर की नमाज काशगर की तारीखी ईदगाह मस्जिद में अदा की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी अरब ने वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा प्रोटोकॉल एजाज दिया। कतर ऑब्जर्वर के मुताबिक सऊदी अरब ने वजीर आजम पाकिस्तान के लिए सुर्ख कालीन की जगह आला तरीन प्रोटोकॉल की अलामत को इस्तेमाल किया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के वजीर आजम की तारीखी पजीराई की गई। वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे फेज में लाहौर में 9,500 हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए कुरानदासी की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानदासी का बाकायदा आगाज किया। रिपोर्ट कर रही हैं शुमाइला शबीर। सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर्स पर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 और मीडियम पावर स्कीम के तहत 10,000 ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कुरानदाजी में कामयाब काश्तकार मोहम्मद आशिक को खुद टेलीफोन किया और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इससे कबल सेक्रेटरी ज़राअत ने वजीर आला मरियम नवाज शरीफ को ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर आला को बताया गया कि 7 एकड़ या इससे ज्यादा मालिकान 75 से 125 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर हासिल कर सकेंगे, जबकि मीडियम पावर ट्रैक्टर्स में 50 से 65 हॉर्स पावर पर 5 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। स्कीम के लिए दरखास्त देने वाले 7,34,000 काश्तकारों में से 2,82,000 काश्तकार कुरानदाजी के अहल करार पाए, जिनमें से 9,500 को कामयाब करार दिया गया। 98% काश्तकारों ने पाकिस्तानी साख्ता ट्रैक्टर और 2% ने बड़े और जदीद इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स के लिए अप्लाई किया था। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स की डिमांड आने पर गैर मुल्की डीलर कंपनियां पंजाब में डीलरशिप और बिजनेस ऑफिस कायम कर रही हैं। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और वहां दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। गुज़िश्ता कई रोज से सैलाबी सूरत हाल के बाद दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी वाक़ई हो रही है। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में कमी और कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। गुड्डू बैराज में पानी की आमद 3,19,000 क्यूसिक है और यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है, जबकि सखर में पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक है, जिसकी वजह से दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सिंध में सैलाब से मुतासरा पानी से कच्चे के इलाके जेर आब हैं, जबकि कोटरी बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने से लाड़काना, नौशेरो फेरोज, दादू और जामशोरो अजला के कच्चे के इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी है। मुतासरीन के मेडिकल कैंप के अलावा दीगर कैंपों में मुतासरीन को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। महकमा आबपाशी के मुताबिक रवा हफ्ते पानी की सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और बैराजों पर पानी के दबाव में कमी वाक़ई होगी। दरियाए सिंध पर बंदों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है और हसास बंदों की निगरानी के लिए महकमा आबपाशी के एहलकार खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है, जबकि मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। रिपोर्ट कर रही हैं वर्दा सलीम। सूबे पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आ चुका है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी पानी की सतह में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,04,000, जबकि सुलेमानी के मुकाम पर पानी का बहाव 81,000 क्यूसिक है और हट तरीमों के मुकाम पर पानी का बहाव 41,000 क्यूसिक है। पंजनत के मुकाम पर पानी का बहाव 1,33,000 क्यूसिक है। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 4700 से ज्यादा मोजाजात को नुकसान पहुँचा
गया और मजमूई तौर पर 47,55,000 लोग मुतासर हुए, जिनकी बहाली का काम जारी है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जलालपुर पीरवाला का दौरा किया और सैलाब से मुतासर 36 इंच गैस पाइपलाइन का जायजा लिया। उन्होंने मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर गैस की तरसीली निजाम का मुआयना किया और मौके पर सुई गैस इंतजामिया को अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुतबादल पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी बिला तातुल जारी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अलीपुर के 19 देहात में टेंट सिटी कायम कर दिया गया है और वहाँ इमदादी सामान की तरसील जारी है। रिलीफ कैंपों में खाना पीने का साफ पानी, खुश्क राशन और मवेशियों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। हर टेंट सिटी के साथ क्लिनिक ऑन व्हील और फील्ड अस्पताल कायम किए गए हैं, जहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ मौजूद हैं। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, काजम पीरजादा, राना सिकंदर हयात और सुहेब भट्ट समेत पंजाब काबीना ने 10 दिन से ज्यादा सैलाब ज़दगान के लिए खिदमत सर अंजाम दी। अरकान असम्बली आमिर कोपाक, सबस्तैन बुखारी और नवाब खान ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वजीर आला पंजाब, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और पंजाब काबीना की अनथक मेहनत को सराहा। सैलाब मुतासरीन को बर वक्त मदद पर वजीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन सर्वेलेंस मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट के चेयरपर्सन ब्रिगेडियर रिटायर बाबर अलाउद्दीन ने शकरगढ़ में जस्टर बंद और जीरो लाइन करतारपुर का दौरा किया। उन्होंने जीरो लाइन करतारपुर पर सैलाब मुतासरा सड़क और इतराफ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली का काम जारी है। फरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन के बहाली के लिए हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। वो मुल्तान में सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम करने की तकरीब में शरीक थे। तफसील बता रहे हैं इमदाद हुसैन। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने हमेशा गरीबों और मजलूमों का साथ दिया है और इस वक्त भी हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और आपकी तकलीफ का बखूबी इदराक है। कायम मकाम सदर ने कहा कि वफाक सूबों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान हमारा है और इधर इदारे हमारे हैं। हम सारे सियासी लोग भी मिलकर आपकी मदद करें। मैं हदायत करूंगा MNAs और MPs को वो अश्योर करें हमारी बहनों और बच्चों को इमदाद घरों तक पहुँचे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बहाली के कामों में निजी शोबा भी काविशें कर रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए लगाया गया रिलीफ कैंपों में खुराक का इंतजाम और इलाज मुआवजे के लिए तिब्बी सहूलियात फराम की जा रही हैं और जानवरों के लिए वंडा भी फराम किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि सैलाब की वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाएगा। इमदाद हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जलालपुर पीरवाला के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा मोटरवे सेक्शन पर जारी मरम्मती काम का जायजा लिया। वफाकी वजीर ने सैलाब से मुतासरा 36 इंच गैस पाइपलाइन का भी जायजा लिया। वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि सैलाब से मुतासरा अवाम की सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुतबादिल पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी बिला तातुल जारी है। कमिश्नर मुल्तान ने सैलाब रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन और मोटरवे के मुतासरा हिस्से की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द की सरबराही जर्मन पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट और न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीफन माइकल ने की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ कराने वाला रीजन का पहला सूबा है। लाहौर में पंजाब का सबसे बड़ा और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि पेडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के लिए जर्मनी की जदीद टेक्नोलॉजी का खैर मकदम करेंगे और उम्मीद है कि कैंसर के इलाज के लिए जर्मन इदारों के साथ जॉइंट ट्रेनिंग के खातिर ख्वाह नताइज सामने आएंगे। वफ़द ने कहा कि पंजाब में कैंसर के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशें काबिल तहसीन हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड फितनौल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द गुल रहमान फितनल हिंदुस्तान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक वो अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 17 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। फितनल हिंदुस्तान, जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और गवादर PC होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों, खजदार स्कूल बस धमाका, कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खुदकुश धमाका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले समेत मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अमरीका फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है, जबकि पाकिस्तान और चीन ने फितनल हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा किया है। फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द की हलाकत इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान
پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس کی تفصیل جانیں گے ازکا مقصود سے۔ لاہور میں فیڈریشن آف انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کے اجلاس کی صدارت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا کہ وطن عزیز کو معاشی میدان میں سرخرو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بیرونی محاذ پر بھی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور سعودی ولی عہد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاع کا معاہدہ ہے جو ایک اور بڑا سنگ میل ہے۔ اس سے پہلے پاکستان اور چین کے درمیان سی پیک فیز 2 کے آغاز کا وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے موقع پر باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا، اور اس کے لیے 26 ستمبر کو سی پیک کی JCC میٹنگ بیجنگ میں ہو رہی ہے، جس میں میں جا رہا ہوں اور ہم انشاءاللہ مزید پیش رفت کریں گے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو موسمیاتی مطابقت کا حامل بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ٹیکنالوجی کے فروغ پر توجہ دینا ہوگی۔ حکومت نے جو اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، اس کی بنیادی کامیابی کا انحصار انجینئرز کے تعاون اور کردار کے اوپر ہے۔ اگر ہم پاکستان کی برآمدات کو دیکھیں تو پاکستان کی برآمداتی صلاحیت تبھی بڑھے گی جب ہماری پیداواری صلاحیت میں جدت آئے گی، جب ہم اپنی صنعتی صلاحیت میں بڑھوتری لائیں گے، جب ہم ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اپنی مصنوعات کو عالمی معیار کے اوپر لے کر جائیں گے، اور یہ سب کام انجینئرز نے کرنا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہماری ترجیح ہے، جس کے لیے مضبوط انفراسٹرکچر کا قیام ناگزیر ہے۔ اس سے پہلے فیڈریشن آف انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز آف پاکستان کے اجلاس کی صدارت کے دوران وفاقی وزیر نے قومی ترقی کے عمل میں انجینئرز کے کردار کو سراہا۔ ازکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ SIFC کے تعاون سے چین کے ساتھ زرعی، تعلیمی اور ماحول دوست ترقیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان زراعت، تعلیم اور سبز ترقی میں تعاون کے لیے 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ ان مفاہمتی یادداشتوں کے ذریعے پاکستان میں اقتصادی ترقی ہوگی اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے تحت چین کی جدید ٹیکنالوجی سے پاکستان کے زرعی شعبے میں جدت ممکن بنائی جائے گی۔ تعلیمی تعاون کے ذریعے پاکستان کے نوجوانوں کو جدید تعلیمی وسائل اور اسکالرشپ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ چینی سبز ترقیاتی منصوبے پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں مددگار اور مستحکم اقتصادی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے گزشتہ کاروباری ہفتہ بھی بہت بہترین رہا۔ معاشی سرگرمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ضمیر عباس اپنی رپورٹ میں۔ حکومت کی مؤثر اقتصادی اور سفارتی پالیسیز کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مختلف شعبوں میں تجارت اور تعاون کے فروغ کے لیے امریکہ، چین اور روس سمیت کئی ممالک کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے۔ گزشتہ کاروباری ہفتے میں پاک سعودی دفاعی معاہدہ عالمی میڈیا کی ہیڈ لائنز کی زینت بنا۔ اس معاہدے نے دونوں ممالک کے رشتوں کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ پاکستان پہ حملہ یا سعودیہ پہ حملہ دونوں کو ایک ہی تصور کیا جائے گا۔ پہلے گلف کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ سے جو ہے وہ ڈیفنس لیا کرتے تھے۔ اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ سعودی عربیہ نے پہلی آفر کی ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے گلف کنٹریز وہ بھی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں۔ دفاعی ایگریمنٹ کے بعد جو ہے وہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان تجارتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے، جس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری بھی لگے گی۔ اس معاہدے کا اثر ملک کی اسٹاک مارکیٹ پر بھی پڑا۔ گزشتہ ہفتے اسٹاک مارکیٹ میں 3595 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا اور 251 ارب روپے کی لاگت کے 7.6 ارب سے زائد شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی۔ اسی ہفتے کے دوران اسٹاک مارکیٹ تاریخی بلند ترین سطح 1,59,000
337 पर भी पहुंची। हुकूमत की अनथक मेहनत से मुल्क के मुआशी अशारिये मुस्बत होते जा रहे हैं। हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 करोड़ 10 लाख डॉलर के इजाफे के बाद 19 अरब 73 करोड़ डॉलर से तजावज कर गए हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक अगस्त तक मुल्क की IT की बरामदात 32 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान हमारी तरसीलात ज़र 6.4 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 7% ज्यादा हैं। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे मकबूजा वादी कश्मीर की, जहां भारतीय फोर्सेज और एजेंसियों ने मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और छापों का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एहलकारों ने उधमपुर के इलाके रूरो बसंतगढ़ में एक मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इससे कबल इसी इलाके में एक हमले में भारतीय फौज का एक एहलकार हलाक हो गया था। भारतीय पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग की टीमों ने पैरामिलिट्री एहलकारों के साथ मिलकर श्रीनगर, बारामूला, कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, पुलवामा और शिपियां अजला में छापे मारे। इन छापों के दौरान लोगों को, खास तौर पर नौजवानों को सख्त हिरासत किया गया और घरों से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अहम दस्तावेजात जब्त कर ली गईं। मकबूजा इलाके में दिल्ली की मुसल्लत करता इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को मुसलसल 3 रोज तक श्रीनगर में घर में नजरबंद रखने के बाद आज प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मरहूम के अहले खाना से ताजियत के लिए सोपुर जाने की इजाजत दी। मीर वाइज ने कहा कि हमें एक आमराना निजाम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने सोपुर में गमजदा लवाहिकीन के साथ इजहार ताजियत करते हुए प्रोफेसर भट्ट के इंतकाल को मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के 60वें इजलास के मौके पर मुनक़िदा एक सेमिनार के मुक़र्रीरीन ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मज़मूम भारतीय कोशिशों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की एक मरतबा फिर बैनुल अक़वामी सतह पर पजीरा है। वियना में AIEE की 69वीं जनरल कॉन्फ्रेंस के मौके पर आलमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने पाकिस्तान की मुसलसल पेशरफ और एजेंसी के साथ करीबी ताउन को तस्लीम किया है। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डॉक्टर राजा अली रजा अनवर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मिस्टर ग्रोसी का कहना था कि पुरअमन मकासद के लिए जौहरी साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में पाकिस्तान एक अहम शराकतदार के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। और अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। निहत्ते फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। गजा पर काबिज इस्राएली फौज के हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हमलों में घरों और स्कूलों को निशाना बनाया गया। शहदा में 2 इमदादी कारकुन भी शामिल हैं जिन्हें सियोनी फोर्सेज ने जनूबी गजा में फायरिंग करके शहीद कर दिया, जबकि गजा शहर के बड़े पैमाने पर फलस्तीनी नकल मकानी पर मजबूर हैं। ईंधन न होने की वजह से अस्पतालों में इलाज, मुआवजे की सहूलतें और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ मुअत्तल होने का खदशा है। अफगानिस्तान में तालिबान की कैद में 8 माह से ज़ेर हिरासत बरतानवी जोड़ा रिहाई के बाद कतर पहुंच गया है। कतर की सालिसी के जरिए रिहा होने वाला बरतानवी जोड़ा जब दोहा पहुंचा तो उनकी बेटी सारा बाहर खड़ी थी, जिन्होंने वालिदैन को गले लगा लिया। 80 साला पेट्रिट रेनॉल्ड्स और उनकी 76 साला अहलिया बार भी तकरीबन 2 दहाइयों से अफगानिस्तान में मुकीम थे। उन्हें 1 फरवरी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो बामियान सूबे में अपने घर लौट रहे थे।
और नाज़रीन, भारतीय पंजाब हमेशा बीजेपी के हिमायत याफ्ता हिंदुत्व नजरिए की शदीद मुखालिफत करता आया है, इसलिए मोदी की पंजाब से नफरत कोई नई बात नहीं है और अब इसकी कीमत चुका रहे हैं सैलाब से शदीद मुतासरा भारतीय पंजाब के बाशिंदे। भारतीय पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। लाखों हेक्टेयर पर फैली धान और मकई की फसल जो कटाई के करीब थी बह चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2050 देहातों के करीब 20 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। सैकड़ों देहात के लोग घरों की छतों या गुरुद्वारों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन मोदी सरकार ने सैलाब से पैदा शुदा मसाइल की तरफ से अपना मुंह फेर लिया है। तकरीबन 1 माह से दिल्ली सरकार की जानिब से भारतीय पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के लिए खुराक और अद्वियात, यहाँ तक कि कश्तियों के जरिए बुनियादी इमदाद भी फराहम नहीं की गई है। और अब आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहिदा होने से दोनों मुल्कों का दिफा नाकाबिले तस्खीर हो गया है। वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजिरों और सनतकारों से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि सऊदी अरब के साथ हालिया तारीखी मुआहिदे से दोनों बरादर मुल्कों का दिफा मजीद मजबूत और मुस्तहकम हो गया है। जो अब जारहियत के अज़ाइम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं, अब उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि उन्होंने अपने इन घटिया अज़ाइम को ख़त्म करके अमन और बाइज़्ज़त तरीके से रहना है, और जो मामला उनके साथ हमारा पिछले 78 साल से डिस्प्यूट चला आ रहा है, उसे टेबल पे बैठ के हल करना है, या फिर जो है वो उन्होंने मज़ीद जो है वो ज़िल्लत कमानी है। और जो लोग या मुल्क जो है वो सऊदी अरब की तरफ कोई ईवल डिज़ाइन से देखने का सोच रहा था या वो किसी के जहन में थी, तो अब उसे भी ये मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा, और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क डिफाल्ट के दहाने पर पहुंच चुका था, लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके इसकी मईशत को मुस्तहकम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में सनत और तिजारत की मजीद तरक्की के लिए हुकूमत तरजीही बुनियादों पर इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में सनती तरक्की के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। इस मौके पर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ग्रुप लीडर मियां मोहम्मद इदरीस और सदर रेहान नसीम भराड़ा ने भी खिताब किया। राना सनाउल्लाह खान ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में नादरा के दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। शहदा हमारा फख्र। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वजीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के बहादुर जवान राना उसामा के घर जाकर फातिहा खानी और अहले खाना की दिलजोई की। वफाकी वजीर ने शहीद के जज्बा कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जवानों की कुर्बानियां ही मुल्क की सलामती और हिफाजत की जामिन हैं। उन्होंने कहा कि कौम अपने शहदा और उनके अहले खाना की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि ऑपरेशन बनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी और हालिया सऊदिया पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद भारत अपने ज़ख्म चाट रहा है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि दहशतगर्दी की मौजूदा लहर बानी PTI की पॉलिसीज़ का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है, आइंदा भी मुल्क की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग नून ही किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम का इत्तेहाद मिसाली था। उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। भारत ने खेल के मैदान में घटिया सोच का मुजाहरा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे से दुनिया में नई तारीख रकम हो गई है। सऊदी अरब के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों की बदौलत पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन के दिफा की सादत हासिल हुई। गवर्नर पंजाब ने सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और सऊदी अवाम को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कर के बाहिम्मत नौजवान ने माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए अपनी मदद आप के तहत डैम तामीर कर लिया। रिपोर्ट करेंगे सईद वसीर।
کہتے ہیں کہ ارادے پختہ ہو اور نیت نیک ہو تو وسائل کی کمی بھی آڑے نہیں آتی۔ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ضلع کرک کے گاؤں خرم محمد زئی کے بہمت نوجوان نے اپنی مدد آپ کے تحت چھوٹا ڈیم تعمیر کیا، جس کا مقصد ماحولیاتی تبدیلی کا مقابلہ کرنا اور گاؤں کی زرعی زمینوں کو سیراب کرنا ہے۔ یہ کارنامہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ انسان اپنی مدد آپ کے تحت بھی بڑے کام کر سکتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ زمین کا جو پانی کا سطح ہے وہ اوپر آ جائے گا۔ اس کے ساتھ جو اس کے پچھلی سائڈ پہ یا اگلی سائڈ پہ اگر بورنگ ہوگی تو اس میں پانی اویلیبل ہوگا۔ یہاں پہ لوگوں کو پینے کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس سے زیر زمین کے پانی کا سطح جو ہے وہ بلند ہو جائے گی۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لیٹر پانی ضائع ہو رہا ہے اور ملک میں زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں چھوٹے ڈیمز کی تعمیر وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکی ہے۔ مونسون اور سیلاب کے دوران فالتو پانی کو ذخیرہ نہ کرنے سے اربوں کیوبک میٹر پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ہر سال مونسون کی شدید بارشوں سے سیلاب آتے ہیں جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ کی جو کمیونٹی رین واٹر ہارویسٹنگ ہے اور جو منی ڈیمز اور چیک ڈیمز ہیں ان پہ کام کرنے کی فی الوقت زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایئر فارسٹیشن ایک بہت اچھا آپ کا نیچرل بیریئر کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے، پانی کو روکنے میں بھی اور ساتھ ہی پانی کے ابزارپشن میں بھی۔ عبدالصمد کی یہ کاوش ملک بھر کے لیے ایک مثالی ماڈل ہے جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پانی کا تحفظ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ نوجوان نے اپنے انفرادی کوشش سے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر چل کر ہم نہ صرف اپنے وسائل کو بچا سکتے ہیں بلکہ ماحول کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نئے ڈیموں سے نہ صرف موجودہ بلکہ آنے والی نسل کو بھی فائدہ ہوگا۔ سعید وزیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب۔ ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں۔ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے۔ وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان، پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر۔ ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھول دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں۔ جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے، آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ سو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے۔ کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے۔ حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے لاہور رجسٹری میں انسداد تشدد و انتہا پسندی کے موضوع پر سیمینار ہوا۔ رپورٹ کریں گے نوید حیات۔ انسداد تشدد اور انتہا پسندی کے موضوع پر ہونے والے سیمینار میں وکلاء، ماہرین تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان نے بھرپور شرکت کی۔ سیمینار کی قیادت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان کے نائب صدر رانا غلام سرور اور ایگزیکٹو رکن حمود الرحمان اوان نے کی۔ شرکا نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف قانونی اور ادارہ جاتی رد عمل کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ پالیسی اینالسٹ ڈاکٹر احمد خاور شہزاد نے حکومت کی طرف سے تشدد اور انتہا پسندی کے انسداد کے لیے قائم کیے گئے سینٹر آف ایکسیلنس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ This program initiative promotes community policing and social responsibility. Then comes the Saibane Pakistan narrative. This narrative is rooted in equality of rule before law and interfaith harmony. And the most important thing was that the word minorities was replaced with non-Muslim citizens of Pakistan to emphasize equality in citizenship.
सेमिनार से सीनियर वकला और अहम शख्सियात ने भी खिताब किया। मुकर्ररीन ने आईनी जिम्मेदारियों के तहत अमन और शहरी फ़राइज़ के फ़रोग़ में वकला और तालीमी इदारों के किरदार को उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और इंतहा पसंदी के खिलाफ कवानीन के निफाज में अदलिया के किरदार पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुकर्ररीन को कौमी अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में किरदार के एतराफ़ में यादगारी सवीनियर पेश किए गए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 49 लाख से ज्यादा हो गई है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 68 लाख हो गई है। सिंध में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 82 लाख, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद 2 करोड़ 30 लाख से जायद है। बलूचिस्तान में वोटर्स की तादाद 56 लाख से जायद, जबकि इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 12 लाख 11 हजार है। पीटीवी होम लाहौर मरकज की प्रोड्यूसर सिद्रा तारिक की याद में ताज़ियती रेफरेंस हुआ, जिसमें उनके अहल खाना और पीटीवी के कारकुनों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगी वर्दा सलीम। पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोग्राम्स प्रोड्यूसर सिद्रा तारिक रवा महीने इंतकाल कर गई थीं, जिनके साले सवाब के लिए पीटीवी लाहौर मरकज में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में सिद्रा तारिक की वालदा, बहन भाई और उनके रफीके हयात समेत उनके साथी प्रोड्यूसर्स और पीटीवी मुलाजमिन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डायरेक्टर प्रोग्राम सैफुद्दीन, जनरल मैनेजर पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज डॉक्टर कैसर शरीफ समेत सिद्रा तारिक के साथियों ने सिद्रा तारिक की यादें ताज़ा की और उनके अहल खाना से ताज़ियत की। बड़ा मखसूस उसका एक स्माइलिंग फेस, टू दी पॉइंट बात करना। वो बच्ची कभी भी अपना कोई मसला या मसाइल नहीं देके आई। इवन उसने जब भी बात की तो दूसरे लोगों की ही बात की कि सर इसका ज़रा देख लीजिए। बातें अब रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चला जाता है। पीटीवी हम हाज़िर हैं, बाकी अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, इनको सब्र दे। जो शख्स चला जाता है, जो फौत हो जाता है, उसके लिए सबसे अच्छा सलूक ये होता है, मोहब्बत का इजहार ये होता है कि उसके जो लवाहिकीन हैं, जो उसके प्यारे हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसके बच्चों के लिए हम हाजिर हैं अगर हम उनके कभी भी काम आ सकें। ताज़ियती रेफरेंस में गुफ्तगू करते हुए सिद्रा तारिक के भाई मेजर अब्दुल रहमान और उनके शरीके हयात सैयद माज अहमद ने सिद्रा तारिक के साले सवाब के लिए तकरीब का इनेकाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीटीवी फैमिली ने सिद्रा तारिक का जिंदगी के नशीबो फराज में बहुत साथ दिया। पीटीवी जो है मुझे अभी भी फैमिली की तरह ही फील होता है। आगे भी मैं चाहूँगा कि जो है मैं इसके साथ अटैच रहूँ। एक पर्सनल फीलिंग जो है वो मेरे बहुत ज़्यादा इसके साथ अटैच है। थैंक यू सो मच आपके इस तकरीब का और आपके याद रखने का। और असल उनके साथ यही है कि हम अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। ताज़ियती निशिस्त में सिद्रा तारिक के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। पीटीवी लाहौर मरकज में सिद्रा तारिक के साले सवाब के लिए कुरान खानी और खवातीन के लिए महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शुरका ने हम्दोन्नात के नजराने पेश किए। इस मौके पर प्रोड्यूसर प्रोग्राम्स मरहुमा सिद्रा तारिक के साले सवाब और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। T20 एशिया कप का बड़ा मुकाबला सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत की टीमें कल दुबई में आमने सामने होंगी। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानते हैं जिशान कयूम की इस रिपोर्ट में। दुबई का मैदान तैयार, क्रिकेट शायकीन एक मर्तबा फिर हुए बेकरार। ग्रीन शर्ट्स करेंगी पलट कर वार, सबको है शिद्दत से इंतजार। Shaheen Shah freed well. He announces himself. T20 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक मर्तबा फिर हैं आमने सामने। ग्रुप ए से दोनों टीमों ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई किया। भारतीय टीम पहले और पाकिस्तानी टीम दूसरे नंबर पर रही। Down the track. That's a fine shot. ग्रुप मैच में भारतीय टीम ने जहां शर्मनाक रवैया अपनाया, तो वहीं ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हुए मद्दाहों के दिल जीत लिए। सलमान 11 को अब भी भारतीय मकारी से मुकम्मल होशियार रहना होगा। इवेंट में अब तक पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर उम्मीदों पर पूरा ना उतरा और बॉलर्स को ही बैटिंग की जिम्मेदारियां अंजाम देनी पड़ी हैं। Goes full and it's hit again and that has also sailed away. Back-to-back sixes. मैच की फातेह टीम के लिए फाइनल तक पहुंचने के इम्कानात बढ़ जाएंगे।
has chipped in the air. Fielder's going to settle and fielder takes it. सुपर 4 मरहले में हर टीम 3-3 मैच खेलेगी और 2 बेहतरीन टीमें फाइनल में कदम रखेंगी। ज़िशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। That has completely bamboozled. रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। जिंदा दिलाने लाहौर कौमी टीम की जीत के लिए दुआगो हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद सुफियान। एशिया कप में एक मरतबा फिर रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। शायकीन क्रिकेट उम्मीद कर रहे हैं कि इस मैच में कौमी टीम कमबैक करेगी और भारत को सुपर 4 मरहले के मुकाबले में हराकर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि कौमी टीम अपनी गलतियों से सीखकर मैदान में उतरे और बॉलिंग समेत बैटिंग पर भी तवज्जो दे। हम इंडिया के साथ हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा इंडिया को और परफॉर्म अच्छा करेगा। उम्मीद यही है कि अच्छा खेलेगी, जीत जे हमारी तो दुआ है पाकिस्तान के लिए। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि दोनों टीमों के दरमियान मैच में खिलाड़ियों की सलाहियतों के साथ साथ आसाब का इम्तिहान भी होता है। बड़े मैच के बड़े प्रेशर को बर्दाश्त करने से ही जीत को मुमकिन बनाया जा सकता है। जो हमारे लास्ट टाइम जो पाकिस्तान इंडिया के हालात थे उसमें हमने इंडिया को बड़ी अच्छी मात दी। हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम भी इसी तरह इंडिया को मात दे। जी कल इंशाल्लाह उम्मीद तो है पाकिस्तान जीतेगी, देखते हैं, बाकी हमारी दुआएं साथ हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है जीत जाएगी। एशिया कप में शामिल रहने के लिए कौमी टीम को भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा कि शायकीन क्रिकेट को दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसे पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के लिए कराची में शायकीन का जोशो खरोश उरूज पर है। कराची में शायकीन क्रिकेट के क्या जज्बात हैं, जानते हैं सिद्रा फातिमा की इस रिपोर्ट में। शायकीन क्रिकेट के जोशो खरोश का मरकज और क्रिकेट का सबसे दिलचस्प मुकाबला पाकिस्तान बमुकाबला भारत। दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान और भारत का टाकरा हमेशा से ही शायकीन क्रिकेट की दिलचस्पी और भरपूर जोश का मरकज रहा है। दुबई में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने होंगे। कराची के शायकीन क्रिकेट ग्रीन शर्ट्स की बेहतरीन कारकर्दगी और जीत के लिए पुरुम्मीद और दुआगो हैं। इंडिया और पाकिस्तान का मैच तो वैसे ही बहुत एक्साइटिंग होता है, सारा हमारा यूथ बहुत एंजॉय करता है। इंडिया और पाकिस्तान तो लाइक आपको पता है सबको ही क्रेज होता है इसका। जब भी मैच होता है इंडिया के साथ तो हमारी ये पूरी कौम की दुआएं होती हैं कि हमारा मुल्क जीते। चलो एक हार गए तो कोई मसला नहीं, बाकी आगे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ताला आगे जीत जाएंगे भारत के साथ। हमारी टीम के साथ पूरा सपोर्ट रहेगा, मैच जो है वो पाकिस्तान विन करके रहेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के पहले मैच में अगरचे कौमी टीम फतह हासिल न कर सकी, ताहम शायकीन क्रिकेट का जोश जज्बा अब भी बरकरार है और वो पुरुम्मीद है कि शाहीन्स अपनी पिछली गलतियों से सबक हासिल करके इस मैच में पाकिस्तान को फतह जरूर दिलाएंगे। शायकीन क्रिकेट का जोश जज्बा अपनी जगह बरकरार है और वो पुरुम्मीद है कि कौमी टीम शानदार कमबैक करके फतह अपने नाम करेगी। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। T20 एशिया कप के सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 169 रन का हदफ दिया है, जिसके जवाब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। दुबई में होने वाले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। दर्शन चनाका 64 रन पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 6 छक्के और 3 चौके लगाए। कौशल मेंडिस ने 34, प्राथम निसांका ने 22 और चारित असलंका ने 21 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मुस्तफिजुर रहमान ने 3 और मेहदी हसन ने 2 विकेटें हासिल की। down the ground for 4 and off the over so far, and he's going to get more. Well, नाज़रीन अब आपको बताएंगे मारूफ आलमदीन अल्लामा गुलाम नसीर अल मारूफ बाबा चुलासी की नमाज जनाजा अबटाबाद में अदा कर दी गई। उनके नमाज जनाजे में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, उलमा मशाइख और उनके शागिर्दों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बाबा चुलासी गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए थे। उनका ताल्लुक ज़िला दियामर के इलाके थक से था। बाबा चुलासी सूफ़ी, शायर और कई किताबों के मुसन्निफ थे। उन्हें उर्दू, अरबी, फ़ारसी, पश्तो और शीना समेत कई ज़ुबानों पर उबूर हासिल था। वेदर अपडेट में खुश आमदीद।
नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत नौकुंडी 42, दालबंदी 41 और सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।